Okay, student. Now we have discussed two things. What? The graphical representation and phasor diagram of current and voltage of purely resistive circuit and inductive circuit. Now we are going to study the graphical representation of what? Capacitive circuit, purely capacitive circuit and phasor diagram of that, है ना? तो क्या ले लें, एक सर्किट ले लें जिसमें एक प्योर कैपेसिटर हो, ओके, और इससे हम एक सप्लाई वोल्टेज दे दें, दैट इज अगेन V इक्वल टू Vm sin omega t. Again I am repeating what I have told to you. This volt in as in previous cases, here we again will take this voltage as fixed. Again I am repeating, this value is not fixed. इसको हम एक डायरेक्शन में दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे और उसी के कंपैरेटिवली वेव फॉर्म खींचेंगे किसका? करंट पासिंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, और उसी का फिर हम फेजर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना? इसको इसका ग्राफ के अनुसार, इसका जैसा ग्राफ होता है आप जान ही गए. तो लेट अस here we have taken a capacitor, pure capacitor C, which is connected with a voltage source having voltage V equal to Vm sin omega t. Obviously when this connection is made, a current will pass. Then what will happen? When a current I will pass through this, then what will happen? Actually capacitor is what? You all of you know that when we keep two metallic plates and in between that there is insulator that forms a capacitor, है ना? दो मेटल का प्लेट हो, उसके बीच में कोई क्या हो? एक इंसुलेटर हो, तो उसको कैपेसिटर कहते हैं. जैसे आप बैटरी वगैरह में देखे होंगे, बड़ा सा बैटरी जो इन्वर्टर के लिए यूज में लाते हैं, उसमें ढेर सारा कैपेसिटर होता है. एंड दीज प्लेट्स आर यूज्ड फॉर चार्ज, स्टोरिंग द चार्ज. तो यहाँ हमारा कैपेसिटर है एंड दीज इंडिकेट्स द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. देन व्हाट विल हैपन? when we connect this voltage source with the capacitor, then at first this is what? Current is of alternating nature. Then this plate will be charged first with positive direction, then it will be charged in negative direction. Then let us say that this voltage potential drop across this is what? Vc. V for potential drop across this and C because of the capacitor. जैसे हम लोग पिछले में लिए थे, रेजिस्टेंस है तो VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस. इंडक्टर है तो VL एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. एंड हेयर व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? VC. देन दिस V will be equal to what? VC. Okay. Then what we know? Current passing through this. Okay. This is what? VC equal to Vm sin omega t. That is given already. तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या जानते हैं? Current is what? That is rate of changing flow of charge. इसको क्या कहते हैं? Rate of flow of charge. चार्ज जो है जितना फ्लो कर रहा है उसका रेट. रेट कैसा? टाइम रेट. मतलब हम चार्ज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, वो कहलाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट. देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू d by dt and q is what? We know q equal to cv.
कैपेसिटर में जानते हैं चार्ज कितना होता है, कैपेसिटेंस वैल्यू इनटू वोल्टेज। तो देन हेयर Q equal to C into V is what? That is Vm sin omega. Okay. Then let us differentiate. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर आप कांस्टेंट बाहर कर दीजिए Vm, और ये क्या हो गया d by dt. All of you I think know the differential calculus. Then this is sin omega. Then when we differentiate this, then this will be C Vm, and differentiation of sin omega t will be what? Differentiation of sin omega t with respect to d omega t, and d omega t with respect to, okay, then this value becomes, है ना, ये क्या हो गया, इसका हम ले लें वैल्यू यहाँ पर, इस वैल्यू को यहाँ लिया, है ना, ये वैल्यू यहाँ है, तो I is now equal to CVm, and differentiation of sin omega t with respect to d omega t will be what? sin का कितना होता है, sin थीटा। अब क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा with respect to d theta is equal to what? That is cos theta. तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या है हमारा ओमेगा टी है, तो दिस विल बी सी ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कितना हो गया कोस ओमेगा टी, और डी ओमेगा टी बाई डी टी इज ओमेगा, ओके। देन दिस इज व्हाट, आई इक्वल टू ओमेगा दिस वन सी वी एम cos omega, okay, and we can write this to be Vm, इसको हम 1 by ओमेगा सी लिख सकते हैं, इसको नीचे डिवाइड करेंगे इतना को, तो ये हो जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इसको हम 1 by ओमेगा सी, और इसको ले लें cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी क्या वैल्यू जानते हैं, cos साइन 5/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस। तो यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह पर साइन 5/2 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 5/2 प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ लिखते हैं साइन 5/2 प्लस ओमेगा, ओके, एंड दिस वैल्यू, okay, 1 by omega c is known as what, 1 by omega c is known as x. Then here this value becomes Vm by x sin 5/2 plus omega, okay, or we can write it now sin omega t plus 5/2, but both are the same things, है ना, ये हो गया। अब आइए यहाँ, ये हम लोग डेराइव कर लिए, तो हमारा रिलेशन क्या था, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और ये क्या आ गया करंट हमारा, वी हैव टू कंपेयर दीज टू थिंग्स एज प्रीवियस केसेस, तो ये हमारा क्या हो गया Vm बाई एक्स को हम लोग कहते हैं Im, so this is Vm 1 by omega c equal to x, and Vm by x is known as I, है ना, ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, और ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट। देन दिस इज Im साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ओके। हमारे पास दो तरह का वेक्टर आ गया, है ना, गौर करिए यहाँ, ये हमारा सॉरी, ये हो गया हमारा
sin ओमेगा टी और I इक्वल टू I। अब यही हमारा ग्राफ लेना है इन दोनों का, है ना। इन दोनों का ग्राफ अब ड्रॉ करें। तो इसका तो स्टैंडर्ड ग्राफ हम लोग लेते हैं, कैसे, ऐसे, ये हम ये ले लिए इधर भी, और इस वैल्यू को कैसे दिखा दिए, ऐसे। ये हमारा ये इस तरह का हो गया, नेचर का ये हो गया भी, ये हो गया, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, गौर करें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भी है ना, जिसका पीक वैल्यू कितना है, दैट इज भी, ओके। और ये वाला हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ देखिए, गौर करिए, दिस इज वी एल इन प्लेस ऑफ आई एल, दोनों अपना अपना वैल्यू, ये साइन ओमेगा टी, एस साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू कि अगर हमारा एंगल प्लस में आएगा तो क्या होगा, वो लीड करेगा, और माइनस में आएगा तो क्या करेगा, लैग करेगा। तो हियर वैल्यू ऑफ करंट इज इन प्लस, तो क्या है, करंट लीडिंग होगा, है ना, करंट लीडिंग होगा, और कितना डिग्री से लीडिंग होगा, π/2 से। तो इसका मतलब क्या है, ये जब 0 पर रहेगा तो इसके पहले ये शुरू हो चुका होगा, ये यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये पहले से स्टार्ट है, यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट है, ऐसे आया समझ में, क्या कह रहे हैं, यहाँ गौर करिए। उसके लिए बना दीजिए, हम ग्रीन से बनाते हैं, है ना, ये वाला वैल्यू ग्रीन से दिखा देते हैं, पिछले बार भी ग्रीन से दिखाएं, इस जगह भी ग्रीन से दिखा देते हैं। क्या है हमारा वोल्टेज का एज प्रीवियस केस, कैसे ले रहे थे हम, वोल्टेज को ऐसे ले रहे हैं, जहाँ भी क्या है, भी हमारा भी एम मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका ग्राफ ये क्या है, ये वाला है, ठीक है। और हम करंट का कैसे दिखा रहे हैं, करंट क्या बता रहा है, देखिए गौर करिए, ए आपका कांस्टेंट नंबर, ए आपका साइन ओमेगा टी, ए भी साइन ओमेगा टी, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, प्लस π/2, मतलब ये क्या है, किसका है, करंट का। तो यहाँ करंट क्या है, क्या करेगा, लीड करेगा कितना एंगल से, π/2 से। इसका मतलब ये पहले चल रहा है, तो ये जब 0 पर था ये करंट, इसका मतलब वो कितना होगा, उसका फेज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हमारा पहले से ये ऐसे चल रहा है, क्लियर हुआ, ये जो है एडवांस चल रहा है, ये लीड कर रहा है। जब यहाँ 0 से वोल्टेज शुरू कर रहा है, यहाँ से 0 से, तो ये उस समय कहाँ पर होगा, 90 डिग्री पहले पहुँच चुका होगा। तो कहाँ से चला होगा, यहाँ से चला होगा, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ आया, यहाँ तक ये पहुँचा, तब ये शुरू किया। ओके, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन shows what, this shows that this quantity, which quantity, current, is of leading nature with how much angle, π/2, 90 डिग्री। तो एक करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज को कितना से, 90 डिग्री से। तो हम इसमें क्या दिखा रहे हैं फिगर में, कि वोल्टेज हमारा यहाँ से शुरू हुआ, वोल्टेज 0 है ना, ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और सप्लाइड वोल्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या देख रहे हैं, बट दिस वन करंट इज लीडिंग इट विथ 90 डिग्री, इट मीन्स this is in advance, then when it is at 0 degree, this will be obviously at 90 degree, its phase difference will be 90 degree, it means
ये जब ये यहाँ से शुरू कर रहा है तो ये यहाँ पर पहले से होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ पहले से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, तो ये यहाँ से शुरू कर चुका है। ये जब 90 डिग्री पहुँचता है तब ये शुरू करता है, तो ये क्या कहेंगे 90 डिग्री पहुँच गया तब ये शुरू कर रहा है। तो ये वाला जो है ग्रीन वाला कर्व क्या है, एडवांस है। तो ये हमारा किसका कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर, दिस इज द ग्राफ फॉर आई। इसका मतलब हमारा जो है करंट का ग्राफ ऐसे होगा। वो कैसा है, इस वोल्टेज से लीड कर रहा है, पहले ही से शुरू है, और जब ये 90 पहुंचता है तब ये स्टार्ट कर पाता है। पहले से यहाँ से चल चुका है, और जब ये 90 तक ट्रेवल कर चुका डिग्री तक तब ये शुरू हो रहा है। इट मीन्स इट वाज इन एडवांस। देन दिस इज सेड टू बी इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। तो कैसे ग्राफ बनाए आप, तो हमारा ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे दिखा दें हम, कैसे ये ऐसे दिखाएं हम इसको, कैसे इस चीज को, ये हमारा ऐसे है, कैसे भी है ना, भी इज लाइक दिस रेफरेंस। तो हमारा लीड का मतलब क्या, एंगल प्लस इधर, ये एंगल प्लस 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये आई क्या कर रहा है 90 डिग्री पर है, मतलब ये ऐसे। तो ये हमारा आई हो गया, भी आई इज लीडिंग 90 डिग्री विथ V, ओके। एंड दिस V इज व्हाट, दिस इज द कैपेसिटेंस और वैल्यू ऑफ ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू का ये करंट क्या करेगा, कैसे करेगा, लीड करेगा। दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम of alternating current and voltage of having what, having pure capacitive circuit, capacitive सर्किट है ना। ये आपका क्या हो गया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का ये फेजर डायग्राम हो गया, ये फेजर डायग्राम हो गया, वेक्टर डायग्राम। और ये क्या हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज and alternating voltage and current of purely capacitive circuit। है ना, कैपेसिटिव सर्किट का एक ग्राफ हो गया जिसमें ये आपका भी वैसे दिखा रहा और ये कैसे दिखा रहा है, ये आपका क्या है 90 डिग्री से है ना, 90 डिग्री से, ठीक है, ओके। देन वी हैव स्टडीड प्योरली आर सर्किट, प्योरली एल सर्किट एंड प्योरली सिर्क सर्किट। व्हाट, graphical representation and phasor diagram of alternating voltage with respect to current of resistive circuit, inductive circuit and capacitive circuit. I have explained both. In next classes we will combine R and L। कैसे करेंगे, RL को एक साथ ले लेंगे, एक बार RC को ले लेंगे, एक बार LC को ले लेंगे, एक बार RLC, तीनों बारी बारी से R को C के, R को L के साथ, R को C के साथ, RLC को एक साथ, तीनों का जब कंबाइंड, ये क्या ले रहे हैं प्योरली, अकेले रेजिस्टेंस है, अकेले कैपेसिटेंस है, अकेले है ना, अकेले अकेले रेजिस्टेंस भी अलग, इंडक्टेंस भी अलग, कैपेसिटेंस भी अलग, सब काम फेजर डायग्राम और वोल्टेज वगैरह सब है ना, ग्राफ वगैरह सब समझ चुके। अब अगले में हम क्या सीखेंगे
कि दोनों तीनों को बारी बारी से कंबाइन, रेजिस्टेंस को इंडक्टेंस से करेंगे, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से करेंगे, और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को तीनों को एक जगह कंबाइन करेंगे। तब देखेंगे कि सर्किट का बिहेवियर कैसा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ओके, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। ओके।